پودی ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی دور سے بلا لیتے ہیں اور نام معلوم نہیں ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اس سردی کے موسم میں جب یہاں صبح پہنچا تو بہت زیادہ سردی تھی. اس سردی کے موسم میں اتنا بڑا اجتماع، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارا آنا بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کا اس سخت موسم میں آنا بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو یہ توفیق دی ہے مل بیٹھنے کی، اس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور میرا تو شکریہ بنتا ہے اس شاندار پروگرام کے منتظمین، معاونین، کارکنان کا بھی کہ ان سب نے مجھے بھی اس بابرکت پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی اور سبب یہ حضرات بنے. آج کل کے اس دور میں خاص کر دینی اور مذہبی اجتماعات کا اتنا بڑا ہونا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا ہے. اور آپ تمام حضرات کی جو عقیدت، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تقریباً پچھلے 150 سال سے میدان عمل میں ہے. جب سے فتنہ قادیانیت روح پذیر ہوا، اس وقت سے ہمارے اکابر اس کی سرکوبی کے لیے، اس کے تعاقب میں، اس کے مقابلے کے لیے رات دن کوشاں رہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح چلتے چلتے حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرحیم اشر، حضرت بنوری، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اب ہمارے اکابر ہی اس کا انتظام، اس کی زمام انتظام سنبھالے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم، سلسلہ نقشبندی عالیہ کے وہ بڑے بزرگ ہیں. وہ ہماری مجلس کے ان دنوں امیر مرکزیہ ہیں. اور ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری دامت برکاتہم، حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم، یہ اس مجلس کے روح رواں ہیں. یہ خالصتاً عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک ہے. اس کے علاوہ اس مجلس کا نہ کوئی اور ایجنڈا ہے، نہ کوئی اور پروگرام ہے. صرف ایک ہی ایجنڈے پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرا دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی ذات، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی اولاد، اپنا مال متاع سب کچھ قربان کر دینا ہے. یہ
बुनियादी शर्त है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ वाबस्ता होने के लिए और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए काम करने के लिए। ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम नहीं, ये आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी है। और जिसको अल्लाह ताला इस काबिल समझते हैं, ये चौकीदारी का एजाज़ उसको बख्शते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तबलीगी जमात हमारी अपनी जमात है, हमारे अकाबिर की बनाई हुई जमात है। अगर उस जमात में कोई शख्स इसलिए जाता है, इसलिए तबलीगी जमात में मेहनत करता है, इसलिए शब जुमा गुजारता है, इसलिए से रोज़ा लगाता है, इसलिए चिल्ले लगाता है कि मैं जब यहाँ से फारिग होकर जाऊंगा तो दूसरों को तबलीग करूंगा, जब मैं ये सारा काम करके जाऊंगा तो दूसरों को हिदायत का रास्ता दिखाऊंगा, आमाल की तरगीब दूंगा, दूसरों की इस्लाह करूंगा। तो मैं ये कहा करता हूँ कि इस नीयत से अगर कोई जाता है तो उसका ये अमल बिल्कुल बातिल है, वो अपना वक़्त ज़ाय कर रहा है। तबलीगी जमात में हम जाएं, आप जाएं, शबे जुमा लगाएं, से रोज़ा लगाएं, चिल्ले पे जाएं, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, हम अपने आमाल को मुरतब कर सकें और हमारे अंदर अपने अंदर आमाल का शौक पैदा हो, नेकी का शौक पैदा हो, शब को जागने का शौक पैदा हो। अगर दूसरों के इरादे से जाएंगे तो आपका ये अमल जो है आबस और बातिल होगा। समझ गए मेरी बात? इसी तरह कोई शख्स किसी भी खानकाह में जाता है, वहां रिहाइश पजीर हो जाता है, किसी भी बड़े बुजुर्ग के हाथ पे वो बैत कर लेता है और उनकी खिदमत में दिन रात एक कर देता है, रात को जाग के गुजारता है, दिन रोजे के साथ गुजारता है, जिक्र अज़कार करता है, मुराक़बात करता है, मनाजिल तय करने की कोशिश करता है और उसके दिल में मकसद ये है कि यहाँ से जब मैं फारिग हो जाऊंगा, यहाँ से जब मुझे दस्तार फरागत मिलेगी, मुझे खिलाफत मिलेगी, तो मैं जाकर लोगों की इस्लाह करूंगा, लोगों की नफ्स की इस्लाह करूंगा। तो उसका खानकाह में रहना, किसी बड़े बुजुर्ग की हाथ पे बैत करना, उनकी खिदमत करना, ये सिर्फ और सिर्फ वक़्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। इसका उसको कोई फायदा नहीं होगा और ये अमल उसका बातिल होगा। हम जिसके हाथ पे बैत करते हैं और उनकी हिदायत पे अमल करते हैं, रातों को जाग जाग के नफल पढ़ते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी अपनी इस्लाह हो, मेरी अपनी इस्लाह हो, मेरे अंदर नमाज का ज़ौक़ पैदा हो, मेरे अंदर जिक्र अज़कार का ज़ौक़ पैदा हो, रूहानी बीमारियां मेरी ख़त्म हो। अगर ये मकसद नहीं है और दूसरों की फिक्र है तो उसका ये अमल बातिल होगा। बिल्कुल बयान ही इसी तरह आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत के साथ जिसने वाबस्ता होना है, जिसने मजलिस के साथ अपनी निस्बत जोड़नी है, जिसने मजलिस का खादिम बन के रहना है, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपनी ज़ात की नफ़ी करे, फिर मजलिस की तरफ आए। सबसे पहले अपने इज्जत और वक़ार को एक तरफ रखे, फिर मजलिस की तरफ आए। सबसे पहले वो ओहदों का लालच
लीडर बनने का लालच, सरखैल बनने का लालच, इसको एक साइड पे रखे, मजलिस में आए तो फिर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस की चौकीदारी भी नसीब होगी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी, और इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके कब्र को भी रोशन करेंगे। अगर कोई इसलिए आता है कि मैं मजलिस के साथ वाबस्ता हो जाऊं, तो मजलिस के हवाले से मेरी पहचान हो जाए, मजलिस के हवाले से मेरी इज्जत को दो चांद लग जाएं, मजलिस की वजह से मुझे ओहदे मिल जाएं, तो इस नीयत से जो बंदा आता है, मजलिस में आके पैसा लगाता है, दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है, यकीन मानो उसका ये अमल बिल्कुल बातिल और आबस है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जब हम अपनी इज्जत और नामूस को कुर्बान न कर दें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर अपनी जात की नफी न कर लें, अपनी औलाद, अपना माल, अपना मता, अपने रिश्तेदार, खानदान, सब को जब तक कुर्बान न कर दें, तो यकीन मानो हम मुसलमान भी कहलाने के हकदार नहीं हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अपनी चौकीदारी के लिए कबूल फरमाएंगे, जिसकी वो शफात करेंगे, तो उसको चाहिए कि वो जो कुछ भी करे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए करे, न कि अपनी जात के लिए। हजरात गिरामी, बुनियादी तौर पर अकीदा खत्म नबूवत ये हमारा बुनियादी अकीदा है, हमारे ईमान का जुज़्व ला यनफक है, और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर और रसूल मानते हैं, उसके साथ इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन भी मानना है। खातमुन नबीयीन का मतलब क्या है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी शख्स जितना बड़ा हो, जितना काबिल हो, जितना नेक हो, जितना मुत्तबे हो, जब तक वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन नहीं मानेगा, तो उसका ईमान है ही नहीं, वो उसी तरह काफिर है जिस तरह पहले था। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स को किसी भी दर्जे में नबी, रसूल, जिल्ली, बरूजी, अताई जो भी है इसको मानने वाला वो खत्म नबूवत का मुनकर कहलाएगा। इसलिए जहां अकायद की बहस आती है वहां मामला बहुत ज्यादा हसास हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह है हमारे उलमाए अहले सुन्नत के जो अकायद हैं, हमारी तसव्वुफ की किताबों में भी है कि सबसे पहले उन अकायद को मिन्नु अन तस्लीम करना ईमान की शर्त अव्वल है, और उनमें जो सबसे मोहतम बिशान अकीदा है वो है अकीदा खत्म नबूवत। इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज, इस पर कोई सुलह, किसी के लिए नरम गोशा बिल्कुल बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम है। दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जी हमने कादियानियों के साथ इसलिए मिलना जुलना रखा हुआ है कि वो हमारे इस मिलने जुलने से उनको अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक देगा। वालिद साहब फरमाया करते थे कि उनके ईमान की फिक्र न करो, उनको नसीब होगा या नहीं होगा,
ان کی نحوست سے تمہارا ایمان نہ چلا جائے، اس لیے کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ تعلق یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، لین دین کرنا، تعلق کرنا، دوستی کرنا، اس سے یہ خطرہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری جو بات ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ پہلے تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس کے بعد قادیانی کی بھی فکر کرو، اس کے بعد عیسائی کی بھی فکر کرو، اس کے بعد سکھ کی بھی فکر کرو۔ جب تک تم اپنا ایمان کو محفوظ نہیں کر لیتے تو ان میں سے کسی کے قریب بھی جانا آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ بس یہ چند معروضات تھیں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اکابر اور ہمارے بزرگان موجود ہیں، وہ انشاءاللہ عصر تک اس سلسلے کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔